ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે સૌ 22મી આપણી સંવાદ જે સિરીઝ ચાલે છે, આપણે 10મી મે થી શરૂઆત કરેલી હતી, એમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે આ સંવાદમાં એક એવી વ્યક્તિને લઈને આવ્યા છે, તમને જોઈને લાગશે કે તો આટલા યંગ છે, એમણે શું કામ કર્યું છે, કેવી રીતના છે, કદાચ એવું લાગશે, પણ એમણે જે આપણને કામ કર્યું છે એમની આપણે વાતથી તમે સમજી શકશો કે એમણે આપણા માટે, કારણ કે હું આપણા માટે એટલા માટે કહું છું કે આપણા સૌ વતી એ આપણું કામ કરી રહ્યા છે. આપણી સાથે છે તૃપ્તિ અરોરા. તૃપ્તિ અરોરા એ રિજનલ કોર્ડિનેટર છે આઈપીએન. આઈપીએન ઇઝ અ ઇન્ટરનેશનલ પોલ્યુટન્ટ એલિમિનેશન નેટવર્ક, એટલે કે એ જ એક ગ્લોબલ નેટવર્ક સંસ્થા છે. એમાં 600 થી વધારે પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતી એનજીઓ એમાં જોડાયેલી છે. અલગ અલગ 124 દેશોનો એનજીઓ આમાં જોડાયેલી છે, અને એ લોકો આ માટે કામ કરે છે કે લોકો જે પ્રોડક્શન્સ થાય છે, જેમાંથી ટોક્સિક્સ નીકળે છે, એને એન્વાયરમેન્ટને હાર્મ કરે છે અને એના લીધે પબ્લિકની હેલ્થને નુકસાન થાય છે. તો તૃપ્તિબેન આ સાથે એક ટોક્સિક લિંક જે છે એમાં સાઉથ એશિયન વર્કિંગના એ રિજનલ કોર્ડિનેટર તરીકે કામ કરે છે દિલ્હીમાંથી, અને શી હેઝ માસ્ટર ઇન એન્વાયરમેન્ટલ મેનેજમેન્ટ. એન્વાયરમેન્ટલ મેનેજમેન્ટમાં એમણે માસ્ટર કરેલું છે, અને સેફ અને ટોક્સિક ફ્રી ફ્યુચર ફોર ધ એમના માટે લાસ્ટ 5 વર્ષથી કામ કરે છે. એટલા માટે મેં એવું કીધું કે એ આપણા સૌ વતી આપણા માટે કામ કરે છે. She has been working on various issues concerning human health, environment, biomedical waste, lead, mercury, neophenol, pharmaceuticals. આ બધા વેસ્ટને એના ઉપર કામ કરી રહ્યા છે. She has worked in coordination with different NGO, India and international. બહુ ટૂંકમાં એમનો પરિચય આપ્યો છે. હું જો વધારે પરિચય આપવા જઉં તો આપણો ટાઈમ જાય એમાં, પણ હું એવું ઈચ્છું કે આપણે એમના સાંભળીને એમનો પરિચય વધારે મેળવીએ. એટલા માટે હું વધારે ટાઈમ નહીં લેતા તૃપ્તિબેનને ઇન્વાઇટ કરું છું આપણી સાથે વાત કરવા માટે. આપ સૌનું પણ હું અહીંયા સ્વાગત કરું છું કે આપ સતત અમારી સાથે જોડાયેલા રહો છો. તૃપ્તિબેનને વિનંતી. તૃપ્તિબેન, હું તમને આજે થોડાક પ્રશ્ન પૂછીને હેરાન કરીશ એવું કદાચ થાય, પણ આપણા બધાને અમને બધાને જાણવાની ઈચ્છા છે કે આપ શું કામ કરો છો, કેવી રીતે, અને અમે તમને એમાં કઈ રીતે મદદ કરી શકીએ. સોરી, તમારે હિન્દીમાં બોલવું પડશે. ઓકે. આપણે તૃપ્તિબેનની સાથે હિન્દીમાં આપ સૌ તો સમજી જ શકો છો. તૃપ્તિબેન, I'm sorry. We would like to know how we can this topic affect us, how we should talk about women, public health and all that. So we have a topic today about the toxic free future. तो हम आपसे जानना चाहते हैं आज कि ये टॉपिक के बारे में आप क्या हमको पहले तो कहेंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है, व्हाई शुड वी बी टेकिंग अबाउट वीमेन, કેમ આપણે બધાને આ જરૂરી છે, why we need in our country for toxic free future. Thank you, Sheetal Ben. Good morning, everyone. I'm very glad to be here. मेरे को गुजराती तो ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, तो मैं हिंदी में बात करने की पूरी कोशिश करूंगी. तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी एक कोट से जो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने बोला था कि whenever we look, especially if we look through the lens of poverty, we see that women still bear the greatest burdens. जब भी हम पावर्टी के नजरिए से देखते हैं तो हमेशा हम ये पाते हैं कि विमेन, औरत सबसे ज्यादा बर्डन उठा रही है. आपको पता होगा कि वल्नरेबल ग्रुप्स की हम बात करते हैं ज्यादातर, कि जितने भी हमारी सोसाइटी में ग्रुप्स हैं जो ज्यादा सफर करते हैं इन सर्टेन इशू, लाइक अगर कोई अर्थक्वेक आता है फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली अगर मैं एक ऐसे अर्थक्वेक सेफ एरिया में और सेफ बिल्डिंग में हूँ तो मुझे अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एक कोई अर्थक्वेक प्रोन एरिया में है तो उनको ज्यादा अफेक्ट होगा. तो वल्नरेबिलिटीज की हम बात करते हैं.
तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी पहले आपको बस ये बताने के लिए कि हम क्यों इस इश्यूज पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है जेंडर इनइक्वालिटी से, जो हम डेली लाइफ में, आई थिंक मैं तो एज अ विमेन आई फील कि विमेन आर ट्रीटेड डिफरेंटली, इनइक्वालिटीज होती हैं हमारे साथ, बहुत ही कॉमन है ये। आई थिंक नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू है। विमेन एक्चुअली हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट हाफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हाफ पॉपुलेशन वी आर विमेन। बट आज इस सदी में भी हम लोग स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं एक इक्वल प्लेस, एक इक्वल घर, एक इक्वल वर्क स्पेस, एक इक्वल कंट्री अचीव करने के लिए, बिकॉज हमारी नीड्स और वल्नरेबिलिटीज उतने आसानी से अंडरस्टूड नहीं है जितनी मेन की है। So I feel कि as a women we are made to feel very inferior. हमें हर बात पे ये बताया जाता है कि women are smaller than men. So that issue that actually raises a problem आपका प्रोफेशनल में, जैसे बहुत सारे औरतें उस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं जो बहुत ही लोअर माना जाता है, बहुत ही नीचे का काम दिया जाता है, तो उस वजह से they are also more exposed. ऑब्वियसली ये इशू इज बोथ फॉर मेन एंड विमेन। अगर हम केमिकल एक्सपोजर की बात करते हैं तो मेन आर ऑल्सो इन प्लेसेस जहाँ पे दे आर हाईली एक्सपोज। फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स की अगर मैं बात करूँ या माइनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो वो ज्यादातर काम मेन आर डूइंग, सो दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। बट टुडे हम लोग बात कर रहे हैं विमेन एंड केमिकल्स, और हम इसीलिए बात कर रहे हैं, जो कि शीतल बहन ने मुझसे पूछा, हम इसीलिए इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि इतना इस पे चर्चा नहीं होती है। जेंडर इनइक्वालिटी पे फिर भी बात होती है, लेकिन इस टॉपिक पे बात नहीं होती है विमेन एंड केमिकल्स। क्यों? क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं है। जितना भी केमिकल एक्सपोजर का डेटा है वो स्टडीज सारी की सारी मेन पे की गई है, तो वी डोंट हैव डेटा कि हम ये बोल सकें कि ये केमिकल एक्सपोजर से विमेन हेल्थ पे ये नुकसान होता है। आप ये पढ़ेंगे कि केमिकल एक्सपोजर से ह्यूमन हेल्थ पे क्या नुकसान होता है, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते हैं कि विमेन हेल्थ पे क्या नुकसान होता है। और ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि एज अ विमेन हमारी बॉडी बहुत ही डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल मेकअप, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। हम जिस तरह के चीजें यूज करते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, तो हमारा एक्सपोजर डिफरेंट है। फीमेल बॉडी इज एक्चुअली मोर वल्नरेबल, हमारी बॉडी ज्यादा वल्नरेबल है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ आवर लाइफ, मतलब जैसे कि बचपन में, एडोलेसेंस में, मेनोपॉज में, लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में, उस टाइम पर एक विमेन की बॉडी इज मोर वल्नरेबल टू केमिकल्स, और ज्यादा वल्नरेबल होने से इम्पैक्ट भी उसका ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी डिफरेंस की वजह से एक्सपोजर ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि एक ट्रांसजेनरेशनल इफेक्ट है। ये हम सबको पता है कि एज अ विमेन वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम लोग वी आर गिविंग बर्थ टू अ न्यू जनरेशन। सो ये आपको पता होगा कि प्लेसेंटा के थ्रू बहुत सारे केमिकल्स पास ऑन हो जाते हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, मिल्क के थ्रू बहुत सारे केमिकल्स पास ऑन हो जाते हैं। तो जितने भी केमिकल्स एज अ विमेन आई एम एक्सपोज्ड, मैं उसी केमिकल्स को आगे की जनरेशन में भी एक्सपोज करूंगी। और उस वजह से आपने देखा होगा आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसका कारण, वन ऑफ द रीजंस इज केमिकल एक्सपोजर, जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। यूएस में 2010 में एक ड्रग लिया था काफी सारी औरतों ने, जिसका नाम था डाइइथाइल बेस्ट्रॉल। तो ये बोल के मार्केट किया गया था कि ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, इसीलिए इसे बहुत सारी औरतों ने कंज्यूम किया। लेकिन उसकी वजह से उनमें बहुत एक रेयर टाइप का वेजाइनल कैंसर हो गया, और सिर्फ उनमें नहीं, उनकी आगे की फीमेल उनकी बेटियों में भी हुआ, और उनकी बेटियों की बेटियों में भी हुआ। मतलब 2 जनरेशन तक वो ड्रग का इम्पैक्ट आगे तक गया। तो ये दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल्स जो हम लेते हैं। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हुआ इसकी वजह से, फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई, ब्रेस्ट कैंसर, अर्ली मेनोपॉज। तो ये सारे के सारे इश्यूज हैं। बहुत सारे केमिकल्स, जैसे कि अगर हम बात करें बीपीए है, थैलेट्स है, फ्लेम रिटार्डेंट्स है, ये प्रेग्नेंट विमेन के ब्लड में, यूरिन में पाए गए हैं। और प्लेसेंट और एमनियोटिक फ्लूइड, अगर आपको पता होगा, जो
जिस फ्लूइड के थ्रू एक माँ से एक बच्चे में खाना जाता है, उसमें भी ये सारे केमिकल्स पाए गए हैं। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि ये कितने किस हद तक हम लोग एक्सपोज्ड हैं। और ये बात मैं इस चीज से खत्म करना चाहूंगी कि जेंडर इनइक्वालिटी और विमेन इश्यूज आज के टाइम पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में काउंट किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम सब एक सस्टेनेबल प्लेनेट चाहते हैं, जो कि मैं मानती हूँ कि हम सब चाहते हैं, एक सुरक्षित, साफ, सस्टेनेबल प्लेनेट जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, अगर हमें वो प्लेनेट चाहिए तो हमें जेंडर इक्वालिटी अचीव करना होगा। एंड डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि इतना बड़ा जेंडर गैप है, हम लोग स्टिल वी आर पुटिंग विमेन एक रिसीविंग एंड पे, environmental injustice and social injustice. So I think today मेरा मानना ये है कि अगर हम इस टॉपिक को उठाते हैं तो हमें इसके बारे में और ज्यादा जानकारी की जरूरत है, हमें और ज्यादा लोगों तक की बात पहुंचाने की जरूरत है कि जेंडर इनइक्वालिटी इज बिग इशू जिसे हमें बात करना चाहिए। और विमेन एक्सपोजर जिसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, जिसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और हमारा ज्यादा से ज्यादा डेटा और पॉलिसीज इस हिसाब से होनी चाहिए जो जेंडर रिस्पॉन्सिव हो, ताकि दोनों जेंडर मेन और विमेन पे क्या इम्पैक्ट है और हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उस पे भी नेशनल लेवल पे बात हो। थैंक यू शीतल। थैंक यू तृप्ति बहन, बहुत अच्छी तरह से आपने हमको समझाया कि क्या जेंडर इनइक्वालिटीज है, क्यों केमिकल फ्री, टॉक्सिक फ्री जरूरत है, कितनी जनरेशन्स तक हमको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। पर फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ और मेरे साथ दूसरे लोग भी जानना चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम्स की कितनी अहमियत है, कितना लोग समझते हैं, क्यों जरूरी है इनको समझाना। और डेली यूजेस में आप हम लोग अभी जान ही रहे हैं कि पहले भी हम यूज करते ही थे। एशियंट हमारे जो पुराने पारंपरिक तरीके से हम जब तक सब कर रहे थे तब तक इतना केमिकल यूज नहीं था। पर धीरे धीरे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए, आधुनिकता की तरफ चल रहे हैं, तब से सभी चीजों में हम केमिकल यूज करने लगे हैं। पर अभी जब से ये 8-9 महीने से हम अगर ये पैंडेमिक की बात करें, कोरोना महामारी की बात करें, तो हमारे डेली रूटीन में केमिकल्स, हम आज हाथ से लेके कपड़े, सब्जियां, खाने पीने की सब चीजों में केमिकल का यूज इतना हो गया है। और मुझे आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि ये केमिकल्स जो यूज हो रहा है अब तो घरों में आ गया है। और उसमें अगर जेंडर देखा जाए, अगर बाहर काम करने की बात है, अब तो घर में आ गया है इतना यूज में, तो ये तो डायरेक्टली विमेन और बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। जी तो मैं आपसे बोलूं कि आप उसके तरफ के हमको क्या केयर और करना चाहिए, कैसे, और हमारे जो सिचुएशंस है इंडिया में उसमें हम किस तरह से करें। जी। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक हमारी कंट्री के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि इंडिया एक प्राइमरीली एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारे देश में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है और बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन साइट्स है। इंडिया इज अ हब ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स, लाइक सबसे ज्यादा तो दवाइयाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा दवाइयाँ बनती हैं, बहुत ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है और बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जाता है आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे प्राइमरीली। जैसे हम जितने ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं फील्ड में, उतने ज्यादा हम एनवायरनमेंट को भी एक्सपोज कर रहे हैं और लोगों को भी एक्सपोज कर रहे हैं। मैंने तो बहुत फोटोज देखी है, शायद आपने भी देखी हो, कि औरतें फील्ड में जब पेस्टिसाइड स्प्रे कर रही होती है, क्योंकि औरतों का एक मेजर रोल अपने बच्चों को भी संभालना है, तो वो अपने बच्चों को अपने पास कैरी करके वो पेस्टिसाइड स्प्रे करती है। तो वो उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि वो एक तो आपके खाने में जा ही रहा है, आपके फील्ड के थ्रू आपके पानी में जा रहा है, एयर में जा रहा है, बट आप जो खुद को एक्सपोज कर रहे हो और साथ में आप अपने बच्चों को एक्सपोज कर रहे हो, दैट इज अनदर इशू। सो दिस इज वेरी रेलिवेंट। अब पेस्टिसाइड से क्या प्रॉब्लम है, ये शायद आपने बहुत बार सुना होगा, बट डायरेक्ट जो पेस्टिसाइड से इम्पैक्ट होता है, पेस्टिसाइड्स में काफी सारे पेस्टिसाइड्स आते हैं। एक कैटेगरी होता है जिसे हम बोलते हैं पॉप्स, जिसे बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। मतलब ये परसिस्टेंट है, मतलब ये आसानी से डिग्रेड नहीं होते, ये एक बार एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो एनवायरनमेंट में रहते हैं सालों साल। जैसे डीडीटी के बारे में आपने अगर सुना हो,
तो डीडीटी बैन हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो एनवायरनमेंट में पाया जाता है, इतना ज्यादा उसका हाफ लाइफ है, मतलब इतना ज्यादा उसका परसिस्टेंस है। अब आप पूछेंगे कि रह भी जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब दिक्कत क्या है उससे? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है पेस्टिसाइड्स के साथ कि दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर डायरेक्टली। आपने अगर स्टोरीज सुनी हो, काफी हमारे देश की ही स्टोरीज है, कोडाइकनाल है और काफी इश्यूज हैं जहां पर पेस्टिसाइड्स की वजह से, जहां पे डायरेक्ट एक्सपोजर हुआ है, वहां पर बच्चों के इतनी जेनेटिक डिफॉर्मिटीज हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन वो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज चल रही हैं। तो ये एक कैपेबिलिटी है केमिकल की जो आपकी हेल्थ पे कर सकती है। सबसे मेजर जो मैं बोलूंगी वो कि वो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं, मतलब वो स्लो पॉइजन बोल सकते हो आप, कि वो धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलता है, धीरे 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 ओवर द इयर्स वो आपकी बॉडी में छोटे 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 चेंजेस करते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका फर्टिलिटी रिड्यूस हो रहा है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, एंड देन आपका देन ब्रेस्ट कैंसर है एंड अदर टाइप्स ऑफ कैंसर। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी कॉज्ड बाय पेस्टिसाइड। अब विमेन के साथ इसका क्या कनेक्शन है? विमेन आर मोर ससेप्टेबल टू पेस्टिसाइड, मतलब वही पेस्टिसाइड अगर आदमी पे भी इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वो विमेन पे ज्यादा करता है क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है। विमेन बॉडी में फैटी टिश्यूज ज्यादा होते हैं, तो अगर सेम पेस्टिसाइड विमेन को एक्सपोज करता है तो वो उसमें स्टोर ज्यादा होगा, और ज्यादा स्टोर होगा तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि एक पेस्टिसाइड है जिसका नाम है लिंडेन, उसका एब्जॉर्प्शन, मतलब जो स्किन के थ्रू वो बॉडी के अंदर सोख लिया जाता है, वो 3 गुना औरत में ज्यादा है आदमी से। सो ये एक मेजर डिफरेंस है विमेन और मेन एक्सपोजर्स में। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है। अब इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन लोगों पे होता है, जैसे मैंने बोला वल्नरेबल। अब मैं यहाँ बैठी हूँ दिल्ली में, मेरे को एक प्रोडक्शन फैसिलिटी से डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग उस प्रोडक्शन साइट के पास रहते हैं, उन कम्युनिटीज में रहते हैं, वो उनके अगर पानी के सोर्स, उनका अगर लेक पोल्यूट हो रहा है, उनकी रिवर पोल्यूट हो रही है, उनका वेल पोल्यूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उन पे वो इम्पैक्ट ज्यादा है। तो अगर मैं वल्नरेबिलिटी की बात करूं, तो जो लोग उस जोग्राफिकली, अगर मैं एक इंडस्ट्री से दूर रहती हूँ तो मेरा एक्सपोजर सबसे कम है, जो लोग उस इंडस्ट्री के पास रहते हैं उनका एक्सपोजर उससे ज्यादा है। अब उसमें भी जो लोग पुअर हैं, जैसे जिनके पास सेफ वाटर नहीं है, सेफ फूड सोर्स नहीं है, तो वो लोग और ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। अब उसमें भी सबसे नीचे आती हैं विमेन। वाई? क्योंकि उनका जॉब, उनका सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है हमारा कि सेफ पानी का इंतजाम करना उनकी जिम्मेदारी है, खाना पकाना उनकी जिम्मेदारी है, साफ सफाई करना उनकी जिम्मेदारी है। तो उस वजह से वो और नीचे आती हैं। तो अगर हम सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी की बात करें तो विमेन सबसे नीचे हैं इस पूरे स्ट्रेटा में। अब इसके अलावा ये हो गया एक हम जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। अब अगर मैं डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करूं, तो हम जो लोग काम करते हैं ऑक्यूपेशनली, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो औरतें काम करती हैं, वो एक कार्सिनोजन होता है फॉर्मेल्डिहाइड, उससे सबसे ज्यादा एक्सपोज होती है। जो औरतें प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करती हैं, दे आर एक्सपोज टू स्टाइरीन, थैलेट, बीपीए, बीएफआर, और ये मैं सिर्फ कुछ केमिकल्स की बात कर रही हूँ, लिस्ट बहुत ही लंबी है। फिर हेल्थ केयर सेक्टर में, जहाँ पे मेजरली विमेन होती हैं, नर्सिंग में या फार्मेसी में, वो भी एक्सपोज हैं बीपीए, ट्राइक्लोसैन, मर्करी और बहुत सारे केमिकल्स के। स्पेशली अगर मैं वेस्ट पिकर्स की बात करूँ, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों से कूड़ा लेके जाते हैं या कूड़ा सेग्रीगेट करते हैं, जो लोग डंप साइट्स के, लैंडफिल्स के पास रहते हैं, जो लेडीज और जो बच्चे, उनको और ज्यादा इम्पैक्ट होता है थ्रू द टॉक्सिक फ्यूम्स, जो ओपन डंपिंग और बर्निंग से जो फ्यूम्स निकलते हैं, दे आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू दैट। तो ये मैं बोलूंगी कि क्योंकि हमारी कंट्री में ए एग्रीकल्चर एंड बी प्रोडक्शन एंड इतना ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, एंड ओपन डंपिंग, बर्निंग, सो ऑल दीज इश्यूज आर वेरी पर्टिनेंट, मतलब हमारी कंट्री में है, हमें दिख रहे हैं, और हमें बस ये जानने की जरूरत है कि कैसे ये डायरेक्टली विमेन हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज शीतल बहन ने मुझसे पूछी कि हम डेली यूज में क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। देखा जाए तो अभी कुछ सालों में, जैसे कि शीतल बहन ने बोला कि हम काफी केमिकल्स पे अब डिपेंडेंट हो गए हैं, स्पेशली कोविड के टाइम तो हुए हैं। बट अगर मैं जनरल बात करूँ तो विमेन मोस्टली कॉस्मेटिक्स ज्यादातर औरतें यूज करती हैं। हमारा ट्रेडिशनल रीजन भी उसके पीछे बहुत है, और बाय चॉइस ऑल्सो मेनी विमेन यूज कॉस्मेटिक्स।
तो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फेयरनेस क्रीम में मरकरी पाया गया है बहुत हाई मात्रा में, और मरकरी एक न्यूरोटॉक्सिन है, आपके दिमाग पे डायरेक्टली वो असर डाल सकता है। और मरकरी इज अ नोन केमिकल जो प्लेसेंटा के थ्रू एक माँ से एक बच्चे में जा सकता है और उसके दिमाग की ग्रोथ को भी रोक सकता है। इतना हाई इम्पैक्ट करने वाला केमिकल हमारी फेयरनेस क्रीम में है और हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हम लोग उसे यूज करते हैं, जब तक वो कोई केमिकल हम टेस्ट नहीं करते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि इसमें ये है। तो ये एक प्रोडक्ट है जिससे हम इम्पैक्ट होते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग एजेंट्स हैं। जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स हैं जो अब हम लोग अपने घरों में यूज करने लगे हैं, ओरिजिनली ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स थे जो कुछ साल पहले धीरे धीरे करके मार्केट कर दिए गए हैं और अब हम उन्हें घरों में यूज करते हैं और हम लोग उन्हें यूज के बिना नहीं रहता। आई मीन वी थिंक कि ये बहुत ही जरूरी बात है, जरूरी पार्ट है हमारे घर की सफाई का, जो इंडस्ट्रियल एजेंट्स हैं। तो इनमें बहुत नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। हमने काफी स्टडीज में पढ़ा है कि मतलब पर्सनली बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कई बार ये चीजें पढ़ के कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है जिसमें केमिकल नहीं है। तो कपड़ों से लेके बच्चों के खिलौने, फर्नीचर, अगर बर्तन आपने देखे हो, नॉन स्टिक कुकवेयर बहुत ज्यादा फेमस हो गए पीछे कुछ टाइम में, बट ये नॉन स्टिक कुकवेयर में एक एक केमिकल होता है जिसे PFAS बोलते हैं, पर फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। तो ये फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, और इनकी कोटिंग होती है आपके नॉन स्टिक कुकवेयर के ऊपर, जिससे बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जितने फूड पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, जो प्लास्टिक पैकेजिंग हम यूज करते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हम यूज करते हैं, बच्चों के दूध पीने की प्लास्टिक बॉटल्स हैं, सो ऑल दीज थिंग्स हैव इम्पैक्ट ऑन विमेन हेल्थ। और ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजें, ब्रेस्ट कैंसर, इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, स्टंट ग्रोथ, बच्चों की जितनी ग्रोथ इश्यूज हैं, उन सबके साथ इनका संबंध है और इनकी इश्यूज रेज हुए हैं कुछ टाइम में। और मेरा मानना है कि औरतों को ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक पे अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं ही नहीं तो हम इस चीज को ना रोक सकते हैं। और हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कैसे कर सकते हैं कि अगर हम खुद ही इन सब केमिकल से पॉइजन हो रहे हैं और हम अपने बच्चों को पॉइजन कर रहे हैं, तो एक आगे सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम कैसे जा सकते हैं जब तक हम खुद इन चीजों को लेके एक्सपोज हो रहे हैं। थैंक यू त्रुटि बहन, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। मैं भी ये कॉस्मेटिक और ये सोच ही रही थी कि आपसे पूछूं कि डेली यूजेस में, पर मुझे और इसमें थोड़ा डीप में जानना है कि ये जो कॉस्मेटिक्स और ये सब हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग जब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल हुए कि नहीं? क्योंकि थोड़े टाइम पहले हमने जाना था कि फूड प्रोडक्ट्स में जो लीड और ये सब यूज होता है, मैगी का जो बहुत बड़ा इश्यू हुआ नेशनल का, वैसे कहीं फूड प्रोडक्ट में, फ्रोजन फूड्स में ये सब है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर उसके जो लेबलिंग में प्रॉब्लम है, जो मिस लेबलिंग होता है, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो रेगुलेशंस में प्रॉब्लम है। अपने यहाँ पे इंडिया में लैक ऑफ रेगुलेशंस है कि अवेयरनेस का प्रॉब्लम्स है, लोग ज्यादातर पढ़ते नहीं है, हाँ, कि लेबल दिए है पर लोग पढ़ते नहीं है। तो इस तरह से रेगुलेशंस में गवर्नमेंट या जो एनजीओज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा आप बताइए। जी, सबसे पहले तो आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया कि प्रॉब्लम क्या है, लेबल का इशू है या क्या है। तो लेबल मिस लेबलिंग एक बहुत ही बड़ा इशू है। बीइंग अ कंज्यूमर, मतलब अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं अपने लिए कोई कॉस्मेटिक लेने जाती हूँ, तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ उसको पढ़ने की। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं बोलूंगी एज अ कॉमन पर्सन, कि मुझे या तो आधी चीजें पता नहीं है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मुझे केमिकल्स के नाम नहीं पता है, ज्यादातर मुझे नहीं पता है कि उनके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन ही उतनी नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि क्या प्रोडक्ट में क्या केमिकल होना चाहिए, क्या हम यूज कर सकते हैं, क्या हम यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जितने भी टॉक्सिक केमिकल हैं वो लेबल्ड ही नहीं है। जैसे मैंने आपको मरकरी का एग्जांपल बताया, हमें कैसे पता चला कि स्किन में क्रीम में मरकरी है? किसी ने टेस्ट किया तो पता चला। कंपनी ने नहीं बताया कि देखो मेरी क्रीम में मरकरी है।
विच इज रॉन्ग, क्योंकि एक तो पहली बात मर्करी जैसा टॉक्सिक सब्सटेंस क्रीम में होना ही नहीं चाहिए, और दूसरी बात अगर आपने डाला है फॉर सम रीजन तो उस पे लेबल होना चाहिए, सो दैट एज अ कंज्यूमर हम एक इन्फॉर्म चॉइस ले सके कि मुझे मर्करी वाली क्रीम अपने चेहरे पे लगानी है या नहीं लगानी है। तो मिसलेबलिंग एक सबसे बड़ा इशू है, जो बहुत मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने हजार्डस केमिकल्स लेबल करते ही नहीं है उनके जो भी प्रोडक्ट्स में होते हैं। दूसरी चीज लैक ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन धीरे धीरे बिल्डअप होती है, जैसे आपने एनजीओ का रोल बताया, तो एज 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 ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनजीओ मुझे जो लगता है कि हम लोग स्टडीज करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं कि किसमें क्या केमिकल है, फिर हम लोग उसका पढ़ते हैं कि उससे क्या नुकसान हो सकता है, फिर हम उसका एक फाइट लड़ते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ताकि उस पे रेगुलेशन आए, विच टेक्स ईयर्स, सालों लगते हैं इस प्रोसेस में। कई बार गवर्नमेंट भी अपने तरफ से इनिशिएटिव्स लेती है एंड दे ट्राई टू बैन। अब जैसे आपने मैगी का एग्जांपल दिया, तो ये भी सीएससी नामक एक संस्था ने टेस्ट किया और पाया कि इसमें लेड है, और तब वो इशू हुआ और तब पता चला कि लेड है या लेड नहीं है। तो लैक ऑफ रेगुलेशन एक और बड़ा इशू है, रेगुलेशन आने में और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में काफी लंबा प्रोसेस है। दूसरी चीज लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इवन इफ कुछ प्रोडक्ट्स पे, अब जैसे काफी लोगों को ये आइडिया है कि क्रीम्स में केमिकल्स हैं या बहुत सारी चीजों में केमिकल्स हैं, और आज के टाइम पे मैं देख रही हूँ मेरी जनरेशन स्पेशली बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि हम लोग अपनी ट्रेडिशनल चीजें यूज करें या हम सेफर प्रोडक्ट्स यूज करें। लेकिन सेफर प्रोडक्ट्स यूज करने में दो इश्यूज हैं, एक तो उतने वो इजीली अवेलेबल नहीं है, अगर मैं अपने मार्केट में जाती हूँ और वहां जाके मैं ढूंढती हूँ तो शायद मुझे वो इतना इजीली एक ऑल्टरनेटिव सेफर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और शायद उनको पता भी नहीं होगा इतना जितना जितना शायद नॉर्मल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दूसरी बात, उनका कॉस्ट वेरिएशन भी है, अभी भी जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो सेफर प्रोडक्ट्स हैं, वो शायद इतने कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है एट दिस मोमेंट कि मैं एज अ कंज्यूमर मैं उसे चूज करूं। सो दीज आर द तीन तीन ये मेजर इश्यूज है जो मुझे लगते हैं, जो हमें एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न करते हैं कि मैं चाह के भी कई बार सेफर प्रोडक्ट्स अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ की मिसलेबलिंग, लैक ऑफ रेगुलेशन एंड लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जी तृप्ति बहन, पर मुझे और आपको लगेगा कि बहन, पर ये जो मिस लेबलिंग या अवेयरनेस नहीं है, तो फिर इसमें एनजीओ के रोल्स या फिर हमारे जैसे हमको भी आप गाइड कीजिए कि हम जो स्टूडेंट्स अवेयरनेस कर रहे हैं, हमारा जो ये ग्रीन कैटलिस्ट का ग्रुप है, तो हमें भी आज आपके थ्रू कहीं केमिकल्स के नाम पता चल रहे हैं, हम एजुकेशन फील्ड में हैं तो भी नहीं पता है। तो जनरल पीपल, हम इंडिया की सिचुएशंस में बात कर रहे हैं, तो जनरल पब्लिक को तो ये पता होना है ही नहीं, जी तो उनको हम किस तरह से अवेयर करेंगे, क्योंकि उनको ये बड़े बड़े केमिकल्स नाम बताएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनको समझ में आएगा। तो जी हमको किस तरह से उनको अवेयर करना चाहिए, किस तरह से उनमें जागृति फैलाए कि ये लोग ये प्रोडक्ट यूज नहीं करें। मैं, आपने बताया वैसे कि नॉन स्टिक बर्तन, तो हम जब न्यूट्रिशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, मैं एक होम साइंटिस्ट भी हूँ, तो हम ये बताते हैं कि आप पुराने नॉन स्टिक बर्तन मत यूज करिए, आप पुराने अपने लोहे के बर्तन की तरफ जाइए, तो आप आयरन मिलेगा, ये मिलेगा, तो उस तरह से हम करते हैं। तो ये विमेन्स की भी कहीं तरह से वो है कि क्योंकि आज सब वर्किंग हो गए हैं, जी तो उनको जल्दी से सब कर लेना है, तो एल्यूमिनियम का कुकर यूज करने लगे हैं नॉन स्टिक बर्तन यूज करने के लिए कि फटाफट क्लीनिंग भी इजीली हो जाए और काम भी जल्दी हो जाए। तो ये सब में से हमारी जो लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है, उसको हम वापस कैसे लाए, क्योंकि ये यूज नहीं कर रहे हैं या वापस अपनी ट्रेडिशनल मेथड्स में आ रहे हैं, वो अभी मोस्टली 2 to 3% होंगे। जी अदर 95% आर यूजिंग दिस ऑल नॉर्मल थिंग्स जो मार्केट में एडवर्टाइजिंग थ्रू उनको इम्पैक्ट मिल रहा है। जी तो उनको हम कैसे अवेयर करें, वापस उनके माइंडसेट को कैसे चेंज करें, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स जाके बोलेंगे तो बच्चे तो कॉलेज लेवल के और छोटे, तो उनकी बात लोग किस तरह से सुने, तो जी आप वो जरा बताइए। जी
एक तो मुझे लगता है फर्स्ट मैं आपका एनजीओस का क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगी। तो एज एनजीओस जो हम करते हैं, जो हमारा मेथड रहता है जनरली, कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स में क्या क्या केमिकल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर हर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पढ़ेंगे या हर प्रोडक्ट का मेकिंग पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं पढ़ूं कि बेबी फीडिंग बॉटल में प्लास्टिक क्यों जाता है, ये अगर मैं जानना सॉरी बेबी फीडिंग बॉटल में बीपीए क्यों जाता है, अगर मैं ये जानना चाहूँ, तो इसका हमने एक स्टडी किया कि बीपीए करके केमिकल होता है जो बेसिकली एप्लीकेशन है उसका, वो प्लास्टिक की लाइफ बढ़ा रहा है, वो उसे सॉफ्ट कर रहा है फॉर वट एवर रीजन। लेकिन अब हम उसको फिर जानेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या है। तो एक ये हम स्टेप फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, बच्चे यूज करते हैं, विमेन यूज करते हैं, जो और उनमें क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज हो सकते हैं। देन वी आइडेंटिफाई कि क्या उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कोई इम्पैक्ट हो सकते हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। फिर हम उसका टेस्टिंग करते हैं। जैसे कुछ साल पहले हमने बच्चों के दूध पीने की बॉटल टेस्ट की और हमने पाया कि उसमें बीपीए है। फिर हमें पता चला कि बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स में बीपीए होता है। फिर बीपीए का इम्पैक्ट क्या होता है। फिर हमने उसका पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट के साथ बात किया, बहुत ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन किया, बच्चों तक ये बात पहुंचाई, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स किए, सोशल मीडिया अवेयरनेस किया, सब तक ये बात पहुंचाई, स्टेक होल्डर मीटिंग करी, ताकि ये बीपीए जैसा केमिकल एटलीस्ट बच्चों के प्रोडक्ट में ना हो, क्योंकि ये एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल है, सीधा सीधा डेवलपमेंट रोक देगा बच्चे की। तो इस पे फिर अब जाके हमारे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है। तो ये एक प्रोसेस है जो हम एज एनजीओ फॉलो करते हैं, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। जैसे पॉप्स की मैं बात कर रही थी, उसमें भी यही होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पेस्टिसाइड नहीं, अभी जैसे इंडिया ने पीछे कुछ पेस्टिसाइड्स बैन किए थे, तो ये इंटरनेशनली भी ये प्रोसेस फॉलो होता है कुछ कन्वेंशंस के थ्रू, एंड नेशनली भी फॉलो होता है। तो हम दोनों लेवल पे काम करते हैं हार्मफुल केमिकल्स को रेगुलेट करने की। और यही एक तरीका है मुझे लगता है जिससे एनजीओ फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपका रिसर्च स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या केमिकल यूज हो रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, दैट इज प्राइमरी। उसके बाद आप बात करेंगे कि इसको हम कैसे, इसका ऑल्टरनेटिव है, कंपनी इसकी जगह क्या यूज कर सकती है जिससे कि इम्पैक्ट भी ना हो और प्रोडक्ट भी सेफ हो। जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात किया, अब बेबी फीडिंग बॉटल बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। हमारा जैसा लाइफस्टाइल है, मदर्स आर वर्किंग, इट्स बहुत डिफिकल्ट है ये, अगर हम वो बॉटल्स नहीं यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरी वो मजबूरी है यूज करना तो मैं कुछ भी, कोई भी केमिकल होगा उसमें, नहीं। तो एज एज एनजीओ, एज कंज्यूमर्स, हम हमेशा सेफ प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं। हम हमेशा ये पूछ सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में क्या है, हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि क्या है मेरे, मैं जो ये खा रही हूँ या जो मैं अपने बच्चे के लगा रही हूँ या जो मैं खुद अपने यूज कर रही हूँ या मैं अपनी फैमिली को दे रही हूँ, उसमें क्या केमिकल है, क्या उसका कोई नुकसान तो नहीं है। तो ये चीजें हम, वी नीड टू क्वेश्चन द कंपनी, क्योंकि हर चीज के ऑल्टरनेटिव्स बन सकते हैं, उसके बिना भी काम हो सकता है। तो वी नीड टू पुश फॉर दैट ऑल्टरनेटिव, एंड वी नीड टू पुश की सेफर प्रोडक्ट्स और सेफर ऑल्टरनेटिव्स हो हर एक चीज के जो हम यूज करें, स्पेशली फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। दूसरी चीज जो बोला आपने एज कंज्यूमर, तो एज कंज्यूमर मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा आज की टाइम पे, क्योंकि इतना केमिकल एक्सपोजर है, वी नीड टू बी मोर अवेयर, वी नीड टू जस्ट नो मोर। हम जितना ज्यादा चीजों को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ज्यादा जरूरी है। हमें हर चीज पे सवाल पूछने बहुत जरूरी है। जैसे आपने अगर पीछे सुना हो तो हम जितने सैनिटाइजर्स आजकल यूज कर रहे हैं, पीछे एक स्टडी आई थी कि इसमें एक केमिकल था, केमिकल तो नहीं बोलेंगे, मतलब इट्स इथेनॉल जैसे होता है सैनिटाइजर में, उसकी जगह पे मीथेनॉल था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो गए, बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हो गया। तो जब आप एक सैनिटाइजर खरीदने जा रहे हैं तो आप उसमें पढ़िए कि उसमें क्या होता है, आप अपने शॉपकीपर से पूछिए। तो मैं मानती हूँ कि आपके शॉपकीपर को भी नहीं पता होगा और शायद अभी आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये पूरा प्रोसेस विल टेक सम टाइम। हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना ज्यादा हम कंपनीज को प्रेशर करेंगे एज पब्लिक ऑल्सो, उतना ज्यादा पीछे से भी दे विल ट्राई टू गिव अस सेफर प्रोडक्ट्स। इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई, जैसे आपको पता होगा, जो पब्लिक मांगेगी वही कंपनीज बनाएंगी। हम केमिकल्स मांगेंगे तो वो हमें केमिकल्स फीड करेंगे, हम केमिकल फ्री चीजें मांगेंगे तो वो हमें केमिकल फ्री चीजें बना के देंगे। जैसे लेडिक पेंट का एक एग्जांपल है। पेंट में एक केमिकल होता है जो लेड, जो कि बहुत बहुत हार्मफुल है। हम कई साल से उस पर काम कर रहे हैं, हमारे देश में उसका रेगुलेशन भी है। ये केमिकल सबसे ज्यादा बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। और आपको पता होगा, बच्चों की आदत होती है, छोटे बच्चों की स्पेशली, की हर चीज मुंह में डाल लेना, हाथ मुंह में डाल लेना। तो उनपे ये हैंड टू माउथ हैबिट की वजह से
काफी इम्पैक्ट पाया गया लेड का, उनके ब्लड में लेड पाया गया। तो इस पे हमने काफी स्टडीज की और आज आज के टाइम पे भी बहुत मैन्युफैक्चरर जो लेड यूज करते हैं पेंट में, वो आज भी बोलते हैं कि नहीं जी इसका कोई सेफ ऑल्टरनेटिव नहीं है, या ये हमें महंगा पड़ेगा, और या दे हैव देयर ओन रीजंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्विच नहीं कर सकते। आज बहुत सारे पेंट ब्रांड्स हमारे देश में थ्रू आउट द ग्लोब लेड फ्री पेंट बना रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि एक एनजीओ ने एक दिन ये सोचा कि हम ये टेस्ट करते हैं इसमें क्या है, और ये हमने उस इशू को इतना रेस किया, तो आज ना कि हमारे देश में बल्कि पूरे ग्लोब में इस पे एक रेगुलेशन है, और हमने कितने बच्चों को शायद इस टॉक्सिक केमिकल से सुरक्षित किया होगा। लेकिन इसमें लोगों का भी रोल है। हम लोगों को भी बताते हैं कि आप जाके बोलिए कि हमें सेफ पेंट चाहिए, हमें इसमें लेड सेफ पेंट चाहिए। तो कंज्यूमर का रोल आई थिंक ज्यादातर यही है कि हम ज्यादा चीजों को जानने की कोशिश करें, ज्यादा अवेयर होने की कोशिश करें, और हम अपने प्रोडक्ट्स को, हम अपनी चीजों को क्वेश्चन करें, हम जाने कि हम क्या यूज कर रहे हैं, और हम अपने सप्लायर से, अपने ब्रांड से डिमांड करें कि हमें सेफर केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए। एक और वो है तृप्ति जी, कि मैंने आपको बताया जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है ग्रीन कैटलिस्ट, जी और ग्रीन कैटलिस्ट थ्रू अलग अलग कॉलेज और अलग अलग स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरा ग्रुप है हमारा ग्रीन कैटलिस्ट का, और ये स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो वो इसमें एनजीओ का आपने तो बताया किस तरह से रूल, पर एज ए स्टूडेंट वो लोग क्या कर सकते हैं? जी। एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है स्टूडेंट्स का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि दे आर वेरी पावरफुल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस। क्योंकि अगर मेरे घर में मुझे कोई छोटा बच्चा आके बोलेगा कि ये नहीं खाना है या ये नहीं लगाना है, तो मैं बिल्कुल उसकी बात सुनने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बच्चे आई थिंक बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग हो सकते हैं। तो एज एजुकेटर्स मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज और स्कूल, हमें अवेयरनेस, स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स का मेजर रोल है अवेयरनेस। तो आप बहुत सारे रिसर्च, जैसे आपने बोला कि आपने बहुत केमिकल्स के नाम अभी सुने, या और ऐसे बहुत चीजें हैं जिनके आपको, आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे, बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। तो एजुकेटर्स का मैं बोलूंगी मेजर रोल ये होना चाहिए कि वो इन चीजों को ढूंढे, इन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और अवेयरनेस क्रिएट करें। जाके स्कूल प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे हम लोग ई वेस्ट पे स्कूल प्रोग्राम करते थे पहले, तो स्कूल प्रोग्राम इज वन वे। पोस्टर कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं। सबसे एक चीज जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होती है वो है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। और व्हाट्सएप पे तो आजकल सब लोग फेक न्यूज भी बिलीव कर लेते हैं। सो आई थिंक वी कैन यूज इट टू आवर बेनिफिट। हम लोग उस पे इंफॉर्मेटिव से मैसेजेस बना सकते हैं या पोस्ट बना सकते हैं, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि आप ये यूज करेंगे तो इससे आपको ये नुकसान है, और ये यूज करेंगे तो इससे आपको ये नुकसान है। तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करना, अवेयरनेस, एजुकेशन, आई थिंक दिस इज द मेजर थिंग दैट एजुकेटर्स कैन डू। एंड आई थिंक ज्यादा से ज्यादा, अगर जैसे आपका बहुत अच्छा लगा मुझे प्रोग्राम कि आप ग्रीन कैटलिस्ट एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है, सो दैट उनको आप गाइड कर रहे हैं कि कैसे इस चीज पे काम करना है। तो आप संस्था के साथ जुड़िए, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़िए, एजुकेटर्स, आप एनजीओ के साथ जुड़िए, जो आपको सही सही इंफॉर्मेशन दे पाए, जिसे आप आगे यूज करें और आगे लोगों तक पहुंचाएं, उसे अवेयरनेस मटेरियल क्रिएट करके आगे लोगों तक पहुंचाएं। जी तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी ये टॉपिक्स और ये बातें आपने जो आज हमको अवेयर किया है वो लेके हम आगे प्रोग्राम्स में जा सके। दूसरा ये था कि, और अपने चैट में भी पूछा गया है कि आईपीएन का रोल क्या है, और बच्चों के अपने बॉटल्स के बारे में बात करें तो अभी बॉटल से भी ज्यादा डायपर्स मदर्स यूज करने लगी है, घरों में यूज करने लगे हैं। मैंने तो अभी यहाँ तक अभी यंग गर्ल्स में ये सुना है कि नॉर्मल, अगर पहले तो ऐसा था कि बच्चों को बाहर ले जाते हैं करते हैं तब डायपर्स यूज करते हैं, पर अभी तो रूटीन घर में रात को नींद ना खराब हो इसलिए डायपर, तो रेगुलर डायपर्स के यूज होते हैं, तो उनसे क्या बच्चों को नुकसान होते हैं। और ये जो आईपीएन है उसका इसके लिए क्या रोल है, वो बताइए आप जरा। जी। तो सबसे पहले तो जो आपने डाइपर्स का पूछा, तो अभी ही मेरी संस्था ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें हमने पाया कि थैलेट्स करके जो एक केमिकल होता है वो डाइपर्स में पाया गया है।
तो दिस इज वेरी हार्मफुल, बहुत ही हार्मफुल है ये। एक्चुअली सैनिटरी नैपकिन में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अभी उसका मेरे पास ठोस स्टडी नहीं है, तो मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगी। मैं डाइपर पे जाऊं तो बहुत ज्यादा केमिकल्स, थैलेट, DEHP करके एक थैलेट होता है, वो उसमें पाया गया है, जिसके काफी नुकसान है, एंडोक्राइन डिसरप्टर है, कार्सिनोजेन हो सकता है। तो इसका यूसेज, पहली बात तो मतलब कम से कम, मतलब लाइफस्टाइल इशू है। मैं मानती हूँ कि जैसे शीतल बहन ने बोला कि ज्यादातर हम पहनाते हैं ताकि हमारी नींद खराब नहीं हो, या हम बाहर लेके जा रहे हैं, या वर्किंग लाइफस्टाइल में डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आई थिंक हेल्थ को आज के टाइम में प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना सराउंडेड है इतने केमिकल्स से, कि हमें कोशिश करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, क्योंकि लिमिट करने के लिए। तो डाइपर का एक्सेसिव यूसेज कैन बी वेरी हार्मफुल, इट हैज प्रूवन टू बी वेरी हार्मफुल। स्टडी है हमारी टॉक्सिक्स लिंक की वेबसाइट पे, आप देखेंगे तो थैलेट्स की एक रिपोर्ट है, जिसमें आपको इस पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस मात्रा में मिला है, कौन से डाइपर्स में मिला है, और कितना क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा डिमांड करने की जरूरत है कि थैलेट फ्री डाइपर बनाए कंपनी। तो हम लोग एनजीओ लेवल पे, हम लोग अपने लेवल से इस मुद्दे को हमने उठाया है और हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एज अ कंज्यूमर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जितना हर प्रोडक्ट में केमिकल है आजकल, वी नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव ऑफ आवर चॉइसेस। हमें हर चीज लेने से पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेना बहुत जरूरी है, और जितना हो सके हमें अपना डिपेंडेंसी इन चीजों पे कम से कम करना, और थोड़ा ट्रेडिशनल चीजों पे जाना ही शायद एक सोल्यूशन है आज के टाइम में। दूसरी चीज मैं आईपेन के पॉइंट से बताऊं तो आईपेन ने विमेन एंड केमिकल का इशू उठाया है पिछले कुछ साल से। केमिकल्स पे आईपेन पिछले करीब 20 साल से काम कर रहा है। तो काफी केमिकल्स जैसे कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो मैंने बात किया, पेस्टिसाइड्स, मर्करी, लेड, BPA, थैलेट्स, परफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस जो मैंने बोला कि फ्लोरिनेटेड केमिकल्स हैं, इन सब में हम लोग काम करते हैं। तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव एज आईपेन ये होता है कि हम ग्लोबल काम को लोकली कनेक्ट करते हैं और लोकल काम को ग्लोबली कनेक्ट करते हैं। इसके मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि लेड इन पेंट का मैंने बताया, तो लेड इन पेंट जो मुद्दा है वो टॉक्सिक्स लिंक ने दिल्ली में उठाया था सबसे पहले। उसके बाद आईपेन ने उस इशू को उठा के ग्लोबल कर दिया, मतलब उन्होंने इस इशू को हर कंट्री तक पहुंचाया। जैसे शीतल बहन ने शुरू में बताया, आईपेन के करीब करीब 600 से ऊपर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं 124 कंट्री में। तो क्योंकि हम एनजीओस के साथ जुड़े हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम उनको ट्रेनिंग मटेरियल देते हैं, हम उनको बताते हैं कि हमने ये एक इस देश में ये स्टडी हुई है, ये मिला है, आप भी कीजिए। तो यहाँ से करने के बाद बाकी देशों में स्टडी हुई और सब जगह पाया गया कि ये कॉमन इशू है जो सारी कंट्रीज में है। तो लोकल इशू को ग्लोबल लेके गया, और अब ग्लोबल को भी लोकल लेके आया जा रहा है। मतलब अब आईपेन हेल्प कर रही है सारे छोटे एनजीओस को, ताकि रेगुलेशंस आए। तो सारे देश में एनजीओस काम कर रहे हैं आईपेन की हेल्प के थ्रू। इस पे अपनी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, और रेगुलेशंस बन रही हैं। तो काफी देशों में आज के टाइम पे रेगुलेशन है। तो ये सबसे बड़ा एक एग्जांपल है कैसे एक लोकल इशू को आईपेन ग्लोबल लेवल पे लेके गया, और ग्लोबल से वापस वो लोकली लोगों को, एनजीओस को सपोर्ट कर रहा है और रेगुलेशन से हेल्प कर रहा है। दूसरा इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको कि ग्लोबल इश्यूज को डायरेक्टली, जो ग्लोबल इश्यूज है जैसे कि आप देखे जाए तो पॉप्स है या मर्करी है, ऑल्दो ये लोकल इश्यूज है बट ये रेज हुए थे सबसे ज्यादा ग्लोबल लेवल्स पे। जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन है, या मिनामाटा कन्वेंशन है, या बासल कन्वेंशन है। तो आईपेन इन सारी कन्वेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। इन सारी कन्वेंशंस में पूरी तरह से भाग लेते हैं हम लोग एनजीओस का, और हम लोग लोगों का जो प्रॉब्लम है वो रेस करते हैं। जैसे कम्युनिटीज सफर कर रही हैं मर्करी कंटामिनेशन से या पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी से, तो वो रिसर्च डेटा को, लोकल डेटा को हम आईपेन ग्लोबल लेवल पे रेस करता है, नेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में उन पॉइंट्स को रेस करता है, ताकि वो कन्वेंशंस में वो केमिकल्स इंक्लूडेड हो, या उनको फेज आउट करने का या बैन करने का मेथोडोलॉजी या प्रोसीजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस में फिक्स हो। एंड देन उसको फर्दर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए फर्दर आईपेन हेल्प करता है एनजीओस को टू फर्दर मेक
help मतलब work with the government to create regulation, you have to do more testing, to write more papers, research ज्यादा। तो ये एक मेजर तरीका है। तो आईपेन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं पिछले कई साल से, और हम काफी केमिकल्स पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया लेड, बीपीए, मर्करी, पॉप्स। उसके अलावा विमेन एंड केमिकल्स पे हमने अभी पीछे कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले ही काम शुरू किया है, और मैं आपको एक अपडेट भी देना चाहूंगी। तो हम लोग अभी एक कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली विमेन एंड केमिकल्स पे हम लोग मिलके आईपेन 9 कंट्रीज में 9 संस्थाओं के साथ मिलके हम लोग एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली 9 ट्रेनिंग कोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हर कंट्री में हर एक संस्था एक कोर्स प्रोड्यूस करेगी, जिसमें हम लोग वो आपको बताएंगे, जैसे मैं अभी आपको सिर्फ कुछ मेजर बातें बता रही हूँ, तो वो 1-1.5 घंटे का कोर्स होगा, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये बताएंगे कि किस किस प्रोडक्ट्स में क्या क्या केमिकल्स होते हैं, वो कैसे विमेन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, या फिर पेस्टिसाइड्स पर्टिकुलरली कैसे इम्पैक्ट करते हैं, फिर ईडीसीज पर्टिकुलरली कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है अभी, जिससे अभी हमने बस ये शुरू ही किया है, तो अगले साल हम लोग और इस पे काम करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी ये कोर्स हम लोग बना रहे हैं ताकि हम ये पब्लिक डोमेन में डालें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स अवेयर हो कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या केमिकल से हम लोग एक्सपोज्ड हैं, उसके रिस्क क्या हैं। एंड होपफुली हम लोग इस पे भी बात करेंगे उन कोर्सेज में कि हम कैसे उसको वी कैन प्रिवेंट द एक्सपोजर। जो तृप्ति बहन, आपसे बहुत सारी बातें करके हमको इतना लग रहा है, अभी आपने जो कोर्स के बारे में हमको बताया, तो हम और उसमें जानना चाहेंगे, और जब भी आप शुरू करें, आप हम चाहेंगे कि हम लोगों को इन्फॉर्म करें, क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स है, सब इसमें जुड़ के अवेयर होना चाहेंगे। पर एक मैं अभी कहीं पढ़ाती हूँ, मैं भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ाती हूँ, और उसमें के भी स्टूडेंट है हमारे साथ। तो हमने कहीं पढ़ा था कि आईएलओ ने एक स्टडी किया हुआ है, जो उसका रिसर्च है, उसमें कहीं फाइंड आउट किया है कि सर्वाइकल कैंसर्स जो है, वो बहुत सारे, जो ये हमारे क्लीनिंग वर्कर्स है, उसमें पाया गया है। और उसमें भी आप जब जेंडर की बात हम लोग आज कर ही रहे हैं, विमेन हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हम भी जानते हैं कि क्लीनिंग वर्क है, तो जेंडर के हिसाब से ही विमेन्स के पास ज्यादा चला गया है। तो ये भी विमेन को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है कि तो विमेन्स सर्वाइकल कैंसर ज्यादा अफेक्ट हो रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए अभी कोरोना महामारी में इवन पर्यावरण मित्र और ग्रीन कैटलिस्ट बच्चों ने भी ये काम किया था कि कोरोना महामारी के वक्त जो ये क्लीनिंग वर्कर्स है, उनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, उनके लिए ना पीपी किट और ये सब प्रोवाइड किया जा रहा था। तो उन लोगों ने थोड़ा अवेयर करके उनको मास्क, पीपी किट पहुंचा के बच्चों ने काम किया था। तो उस तरह से ये टॉक्सिक फ्री के लिए जब वो क्लीनिंग वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सर्वाइकल कैंसर के केसेस उनमें ज्यादा आ रहे हैं। जी, तो ये आपने बिल्कुल सही बताया। ये एक स्टडी किया गया था जिसमें पाया गया था कि क्लीनर्स में स्पेशली विमेन में 5 टाइम्स ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के केसेस पाए गए थे। तो ये मेजरली सॉल्वेंट्स की वजह से है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आज के टाइम पे हम जितने क्लीनिंग एजेंट्स अपने घरों में यूज़ करते हैं, ये एक टाइम पे इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स थे। जैसे आप शायद आज से 30-40 साल पुरानी बात करें तो फिनाइल करके घर में सफाई के लिए पहले यूज नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे हाउस होल्ड चीज है, सब घर में हम लोग फिनाइल मंगाते हैं अपना घर साफ करने के लिए, बट इवेंचुअली इसकी जरूरत ही नहीं है। ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट था, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट था, जिसको घरों में हम लोग यूज करने लगे हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि हमें ये मार्केटिंग ट्रेंड है, ये हमें मार्केटिंग ट्रेंड से हट के, जैसे मैंने बोला, ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत है कि हम वो केमिकल को क्यों यूज कर रहे हैं, हमें उसकी जरूरत भी है कि नहीं है, दैट देयर इज नो नीड। बेसिकली ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे घर में फिनाइल नहीं मंगाऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में इतना इन्फेक्शन है कि मुझे उसको क्लीन करने के लिए फिनाइल लगाने की जरूरत है। जो आपने कोरोना की बात बताई, अभी कोरोना के टाइम पे डिसइंफेक्शन का आई थिंक ज्यादा से ज्यादा डर भी बहुत है, क्योंकि
हम सब लोग डरे हुए थे शुरू में कि हमें नहीं हो, हमारी फैमिली को नहीं हो, तो हम लोग यूज कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट्स एंड आई थिंक इस टाइम पे ज्यादा उसकी नीड है क्योंकि इन्फेक्शन है। तो इन दैट केस जैसे आपने बोला हमें सेफर तरीके से केमिकल्स यूज करने चाहिए, पीपीई किट पहनना है, ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, ताकि हम उसे इनहेल नहीं करें, हमारी वो स्किन पे ना हो। जितने भी ये केमिकल्स हैं मोस्टली ये इरिटेंट्स होते हैं, इनसे एलर्जीज होती हैं, ये इनहेल करने की वजह से हमारे लंग्स में प्रॉब्लम करते हैं एंड देन हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से कैंसर या और कई तरह की दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात ये है कि इन सारे केमिकल्स की वजह से इंडोर पोल्यूशन भी होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई भी ऐसी केमिकल अपने घरों में यूज करते हैं तो पहली बात तो आप अपना मुंह ढक के, हाथ ढक के उसे यूज करें। दूसरी बात, आप अपना विंडोज ओपन रखें सो दैट ये जितना भी इसका फ्यूम्स है ये सब कुछ बाहर चला जाए। तो आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से कि पहली बात तो हमें यूसेज ही कम करना है, हमें क्वेश्चन करना है हर चीज यूज करने से पहले कि क्या हमें इसकी जरूरत भी है कि नहीं है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, अगर हमें यूज करना पड़ रहा है फॉर सम रीजन तो हमें उसका पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए एंड हमें उसको पूरा सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए सो दैट वो हमारे घरों में स्टे ना करे और वो परसिस्ट ना करे और हमें नुकसान ना दे। तृप्ति जी, दो एक क्वेश्चंस हमारे साथ चैट बॉक्स में भी है। एक मनीष भाई ने पूछा है कि अगर उनको इस बारे में ज्यादा कुछ ट्रेनिंग लेनी है, जानना है, तो वो लोकली कैसे, कहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये सब हम केमिकल्स की बड़ी बड़ी नाम्स, बड़ी बड़ी बात वो तो कर रहे हैं, पर लोकल आज मैं है, आप है, कि सभी जुड़े हुए हैं। लोकल कॉमन पब्लिक, हम जो वॉशिंग डिटर्जेंट है या बर्तन के हो या कपड़े के लिए है, वो डिटर्जेंट हम यूज कर रहे हैं। अब वो डिटर्जेंट रेगुलर में यूज तो होता है, वो कपड़ों में तो लगता है, आपने पहले बताया कि कपड़ों में केमिकल आता है, पर उस तरह से वो वाटर में ही जाता है, मिलता तो वाटर में ही है, तो उससे वाटर भी कंटेनमेंट होते हैं। तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर पाए, या कौन से डिटर्जेंट किस तरह से यूज करने चाहिए, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के नाम पे कहीं कंपनियां के भी ये ऑर्गेनिक है, ये है, पर हम सब जानते हैं कि कितना क्या ऑर्गेनिक है क्या नहीं है, वो हम तो जानते हैं पर कॉमन पीपल नहीं जानते, इसलिए सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स तो है ही है। या वाइटिंग एजेंट के नाम पे कई चीजें बिक रही है, कलर एजेंट के नाम पे बिक रही है, तो वो सब लोकल घरों में रूटीन में यूज हो रही है। जी तो उनको हम क्या करें। और एक मनीष भाई का जो क्वेश्चन है ट्रेनिंग का, वो आप बताइए। जी, तो ट्रेनिंग तो एज सच बहुत ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज आजकल, जैसे जेंडर इश्यूज पे यूएन ने एक कोर्स निकाला है, वो आप देख सकते हैं। बाकी हमारे रिसर्च स्टडीज हैं, आईपेन का वेबसाइट में यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, तो आईपेन की वेबसाइट पे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो कि बात करते हैं कि खिलौनों में बच्चों के कौन से केमिकल्स मिले गए हैं, या पेंट में लेड है, या फिर और भी जिन जिन प्रोडक्ट्स में हमने टेस्ट किया है और केमिकल्स पाए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो आपको उसमें स्टडीज मिलेगा। कुछ स्टडीज जैसे मैंने डाइपर का बताया या पेंट का बताया, वो हमारी टॉक्सिक्स लिंक की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे रिसर्च मटेरियल काफी अवेलेबल है जहाँ से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने पूछी अबाउट डिटर्जेंट्स, तो पिछले साल ही हमने एक स्टडी किया था और हम एक्चुअली गुजराती आए थे, महेश जी के साथ हमने मीटिंग किया था एक, जिसमें हमें नॉनिल फिनॉल करके केमिकल मिला था, जिसका विच इज अ कार्सिनोजेन। तो दिस केमिकल वी फाउंड इन डिटर्जेंट्स, तो डिटर्जेंट्स में हमें नॉनिल फिनॉल मिला जिसके काफी इट्स एन ईडीसी, एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स, तो इसके काफी टॉक्सिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जो हमें डिटर्जेंट में मिला। और जो जैसे आपने बोला कि इट कैन गो टू वाटर, तो ये बिल्कुल सही बात है। हमने पानी में ही चेक किया था, तो हमने सरफेस वाटर कलेक्ट करके हमने चेक किया, तो हमें उसमें मिला कि ये नॉनिल फिनॉल करके एक केमिकल है जो कि पाया जा रहा है। तो ये डिटर्जेंट में यूज होता है और डिटर्जेंट के थ्रू ही आया था। तो इसका जैसे मैंने बताया कि हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम इन चीजों को पब्लिक डोमेन में लेके आए, लोगों तक ये बात पहुंचाएं, जो पॉलिसी बनाती हैं एजेंसीज उन तक ये बात लेके जाएं, और हम कोशिश करें कि इस पे ज्यादा से ज्यादा रेगुलेशंस बने और ऑल्टरनेट प्रोडक्ट यूज हो। क्योंकि अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जरूरत है यूज करने की, जैसे डिटर्जेंट एक ऐसी चीज है जो हमारी रोज की नीड है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते।
तो आई थिंक द पॉइंट हियर इज कि हमें पुश करना है ज्यादा से ज्यादा सेफर प्रोडक्ट्स के लिए। तो एज एनजीओ हम लोग तो उन चीजों में लगे हैं, आप जैसे पर्यावरण मित्रा है या हम हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं पूरे देश में जो अपने अपने स्तर पे पूरी कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स का यूसेज हमारे स्पेशली डेली प्रोडक्ट्स में कम से कम हो और सेफर ऑल्टरनेटिव्स हो। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द लेबल, क्योंकि एक चीज होती है कि पहली बात तो लेबल उनका करेक्ट होना चाहिए कि जैसे इफ इट इज सेइंग दैट इट इज ऑर्गेनिक बट अगर उसमें कोई केमिकल है तो डेफिनेटली इट इज नॉट। एंड देन आपका then we try to test, अब किसी पे लिखा है कि doesn't have that chemical, लेकिन अगर हमको टेस्ट करते हैं और हम पाया जाता है तो हम फिर उसको चेक करते हैं। तो एज अ कंज्यूमर आप भी अपने ब्रांड से पूछ सकते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं आपको लगता है कि ये कह रहे हैं ऑर्गेनिक लेकिन नहीं है, तो आप उनको जरूर कॉल करके पूछिए कि आपके इसमें क्या है। ये आपका हक है जानने का एज अ कंज्यूमर कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें क्या कॉम्पोनेंट है, उसमें क्या चीजें हैं जो शायद लेबल पे नहीं लिखी गई। जी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सबके लिए करी है, पर हमारे साथ जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं इसमें से किसी को कुछ पूछना है क्या है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिखिए या डायरेक्ट तृप्ति बहन से भी पूछ सकते हैं। तो आप, मैं फ्लोर ओपन कर रही हूँ आपको लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए। आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Anyone has a question, they can ask in the floor. शीतल में मेरा एक क्वेश्चन है। Yes. मुझे ये जानना है कि हम लोग बोलते हैं केमिकल यूज़ जो है हम कम करें, बट जो हम चाहते भी है कि हम नहीं करें, थोड़े कम मात्रा में केमिकल यूज़ हो, बट जैसे तृप्ति जी ने बताया कि वो लेबलिंग में हम वो पढ़ नहीं पाते। उन्होंने जितने केमिकल के नाम दिए वो समझने भी थोड़े से डिफ़िकल्ट हो रहे हैं कि जो केमिकल के नाम है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि कैसे लोकेट करें कि ये हार्मफुल है या ये जो है यूज़फुल है। जनरली हम क्या समझते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट भी यूज़ करते हैं तो हम समझते हैं कि थोड़ा ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। तो ये जो हमारी थोड़ी मान्यताएं हैं और केमिकल यूजेज से जो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, तो मुझे ये जानना था कि इंडिविजुअल हेल्थ पे तो इफेक्ट होता ही है, बट पब्लिक हेल्थ पे कैसे इफेक्ट होता है? थैंक यू फाल्गुनी। एक्चुअली पब्लिक हेल्थ पे तो इसका मेजर इम्पैक्ट है। एक तो डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला कि हम लोग जब एज अ कंट्री हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा साइट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनके थ्रू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस या पोल्यूशन हमारी वाटर स्ट्रीम में या लैंड में या सॉइल में जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट है, क्योंकि ये पूरा एक, जैसे एक मैंने बताया कि अगर कोई कम्युनिटी है जो एक इंडस्ट्रियल एरिया में या एक मैन्युफैक्चरिंग साइट के पास लोकेटेड है, तो उनके ऊपर डायरेक्टली ये केमिकल्स का इम्पैक्ट होता है। एंड बहुत ज्यादा देयर आर स्टडीज इन आवर कंट्री विच शोज दिस कि किसी एक पर्टिकुलर केमिकल का एक उन कम्युनिटीज पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, कहीं पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पाए गए हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज्यादा हैं एक एरिया में। सेकेंडली, केमिकल एक्सपोजर जितने भी प्रोडक्ट्स के थ्रू हमें हो रहे हैं, इट इज हैविंग अ काइंड ऑफ सिमिलर इम्पैक्ट। जैसे मैंने बोला कि इन द पास्ट फ्यू इयर्स बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स ऑफ infertility, of reproductive disorders, of
ग्रोथ डिसऑर्डर्स, ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ, एंड ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली, ये सब कुछ बढ़ गया है. सो आई थिंक दिस इज, इफ यू सी इट, इट्स एक्चुअली अ पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट, जो कि ओवर द इयर्स, क्योंकि ये इमीडिएट नहीं है ना. जैसे कोरोना आपको दिख रहा है कि इमीडिएट है, कोरोना आया एंड देन डायरेक्टली पीपल आर गेटिंग इम्पैक्टेड एंड इमीडिएटली पीपल आर ऑल्सो सम आर डाइंग. तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट है. बट केमिकल एक्सपोजर, एज आई सेड, इज अ स्लो पॉइजन. ये धीरे धीरे ओवर द इयर्स दीज थिंग्स हैव increased, and now actually it is seen as a public health. अगर आप WHO की साइट पे जाएंगे तो काफी केमिकल्स को they say it's a public health issue. जैसे कि AMR है, एक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, which is also, जितने ज्यादा हम मेडिसिन एंटीबायोटिक्स हम यूज कर रहे हैं विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन, और उसकी वजह से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गए हैं, तो इट हैज ओवर द इयर्स अब एक ये पब्लिक हेल्थ इशू बन गया है. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, फाल्गुन. या 100%. जस्ट अनदर क्वेश्चन इज, आपने बोला कि महिलाओं पे जो केमिकल का असर होता है, तो मुझे लगता है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके ऊपर भी ये असर होना ऑटोमेटिक हो जाता है. जी. तो ये जो रोल है वुमेन्स का, जो स्पेशल रोल है, उसमें से उनको बचाने के लिए, मतलब एक तरह से वो वरदान भी है और एक तरह से वो बहुत ही हार्मफुल कंडीशन में भी आ जाती है कि वो खुद के साथ अपने फ्यूचर जनरेशन को भी असर होता है. तो ये मुद्दा ऐसा है कि हम कैसे इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा सके. जी, तो हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं. एक्चुअली मैं भी पिछले कुछ महीने से ही बहुत ज्यादा एक्टिवली अब इस टॉपिक पे काम कर रही हूँ. मेरे लिए ये बहुत क्लोज है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने बोला कि हमें तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, साथ के साथ हमारी आगे की जनरेशन को ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. तो आई थिंक ये टॉपिक हमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है. और सबसे बड़ा वे जो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो है हमारी जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव डेटा. जैसे मैंने स्टार्ट करने में बोला कि जितने भी आप अगर पढ़ेंगे ना, कि आप ढूंढे कि ईडीसी का हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है, आपको मिलेगा ईडीसी का ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है. कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टडीज ऐसा नहीं होता है कि वो स्टडीज स्पेशली विमेन हेल्थ को लेके की गई हैं, जो कि बिल्कुल की जानी चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बोला, विमेन बॉडी इज डिफरेंट एंड हैज डिफरेंट एक्सपोजर एंड डिफरेंट रिस्क. तो जितने ये केमिकल्स हैं, पहली बात तो बहुत ज्यादा इसकी अल्टीमेट नीड है अभी कि ज्यादा से ज्यादा स्टडीज विमेन इम्पैक्ट को लेके की जाए, कि किसी पर्टिकुलर केमिकल का विमेन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है. दूसरी चीज, उस हिसाब से पॉलिसीज, यानी जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज होनी चाहिए. जितनी हमारी जब कोई प्रोडक्ट बैन होता है या जब किसी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बनता है या कोई लिमिट सेट होती है, तो इट इज जस्ट कंसिडर्ड वो एनवायरमेंटल या ह्यूमन हेल्थ को नजर में रखते हुए सेट होती है, वो विमेन हेल्थ को लेके सेट नहीं होती है. या पॉलिसी लेवल पे विमेन रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है. So I think as a women, as NGO, as consumer, I think मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा it is important to have data on women health, impacts on women health, to have policies which are responsive to women health also, and representation of women. जितने ज्यादा women will be there at the policy discussions, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं जब हम international meetings में जाते हैं, because we need to have women who can understand the problem and who can create solutions. अगर मैं as a women participate करूंगी शायद कि BPA की पॉलिसी बने इंडिया में, तो उसका स्टैंडर्ड क्या हो, तो मैं as a women I will consider कि वो women health पे या child health पे क्या impact होगा. So we need to have more gender equality, we need to have more gender responsive policies and gender responsive data. થેન્ક યુ. આઈ થિંક ફાલ્ગુનીબેન તમને આન્સર્સ મળ્યું છે, એની સાથે અમને બધાને પણ જાણવા મળ્યું છે. હું ગ્રુપમાં બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો બીજા કોઈ સવાલ પૂછે એની પહેલા હું એક નાનકડો સવાલ પૂછવા માંગુ છું. સોરી, હું કદાચ એક વધારે એટલા માટે કે हाँ, धारो के सॉरी हिंदी में बोलती हूँ. जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट के बारे में सब लोग जानते हैं, बट मुझे अभी अभी पता चला कि उसमें जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकल पॉइंट इंडिया में हमारा जो हम उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो इंडिया में जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकल पॉइंट ही उन्होंने कोई रखा नहीं है. अगर हमें कोई रिप्रेजेंटेशन करना भी है तो हम कहाँ पे करें. तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे
एक लेवल पे हम कुछ तय कर भी लेते हैं, हम जाके सिग्नेचर कर भी आते हैं, बट एज अ मतलब लोकल लेवल पे हमारे वहाँ वो सिस्टम खड़ा नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मैंने एक ये ट्रीटी की बात की जिसमें फोकल पॉइंट जेंडर इश्यूज पे नहीं है अवेलेबल, ऐसे और सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज है जिसमें इंडिया सिग्नेचरी है, बट लोकल लेवल पे वो पोजीशन खड़ी नहीं की है। आपने जो रिप्रेजेंटेशन का अच्छा बात बताया, तो मुझे सिर्फ यही शेयर करना था कि हम एज अ ग्रुप हम कोई ऐसा प्रेशर टेक्टिक या हमारा रिप्रेजेंटेशन कर पाए। मुझे लगता है चैट बॉक्स में एक और सवाल है, आप शीतल बहन उनसे भी पूछ सकती है। आपका माइक म्यूट है, आप म्यूट है शीतल जी। हाँ, मनीष भाई हमारे साथ दूसरा क्वेश्चन के साथ जुड़े हैं। मनीष भाई पूछ रहे हैं कि जो सी वाटर है, दरियाई जो है, उनको सी वाटर में ये सब जो केमिकल्स जाते हैं उसके कारण जो उसमें उनकी जीव सृष्टि जो रहती है उनमें क्या अफेक्ट होता है और वो क्या कर सकते हैं उसके लिए? मरीन हेल्थ एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक और बहुत इम्पैक्ट्स उसके हैं और बहुत स्टडीज भी की गई हैं। जो आप बता रहे हैं कि बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, और ये बहुत डिस्कशन में है आजकल। आपने देखा होगा कि स्पेशली ऑयल स्पिल, प्लास्टिक इज वेरी बिग इशू, क्योंकि जितना प्लास्टिक वेस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो सारा का सारा जाके ओशंस में, हमारे सीज में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है। तो सबसे मेजर इम्पैक्ट जो उसका है वो है हमारी मरीन हेल्थ। आपने नोटिस किया होगा आजकल केसेस ऑफ कोरल रीफ डिटोरेटिंग बहुत बढ़ गए हैं। कोरल रीफ एक बैरियर की तरह काम करती है, वो डिटोरेट हो गई है। बहुत सारे एनिमल्स आर मरीन एनिमल्स आर गेटिंग एंडेंजर्ड, या फिर वो बिल्कुल ही डिसअपेयर हो रहे हैं हमारे सिस्टम में से। एंड आई थिंक एक सस्टेनेबल, मतलब ये एक पूरा सिस्टम है ना, हमारा प्लानिट है। आई मीन पानी में क्या हमारी इकोसिस्टम है, हमारे लैंड पे क्या इकोसिस्टम है, हमारे ह्यूमंस का क्या रोल है उसमें, ये सब का सब एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो अगर एक भी सिस्टम कहीं पर भी डिसरप्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये एक पूरा हमारा, बोलते हैं ना, हमारे सृष्टि का बैलेंस ये पूरा हिला दिया है इसने। तो मरीन हेल्थ आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके लिए मैं तो यही बोलूंगी कि मेजर थिंग इज कि हमें अपना वेस्ट रिड्यूस करने की बहुत जरूरत है, स्पेशली प्लास्टिक इज सबसे बड़ा क्रिमिनल हमारे मरीन लाइफ का। जो कि प्लास्टिक्स में वो एंटेंगल हो रहे हैं, जिसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक्स बन रहे हैं, दे आर ईटिंग प्लास्टिक्स एंड ऑब्वियसली उनका लाइफ इज गेटिंग endangered. So I think that is one of the major issues, और internationally भी काफी संस्था इस पे काम कर रही हैं, हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, और हम लोग, मुझे लगता है सब लोग अगर मिलके कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल इस इशू को टैकल कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमारे ग्रुप के क्वेश्चंस के भी आंसर दिए हैं। मैं ये जो अपने मरीन उसका बात की उसमें एक ऐड अभी थोड़ा मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर मैंने न्यूज में और ऐसे ही पता था, शायद महेश भाई फाल्गुनी में ज्यादा जानते भी होंगे। तो जापान में जो हुआ था ककरापारा का जो प्लांट का डिस्पोजल्स का उसका, तो अभी बता रहे कि उसका जो पानी उन्होंने अभी तक वो करके रखा था, अभी 10 साल लगेंगे उनको, धीरे धीरे वो लोग उसमें ही बहाएंगे, सी में ही जाने देंगे। तो उससे तो कितना सारा इफेक्ट होगा, क्या होगा, अभी तो वो सब स्टडी में आया ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो वो लोग करने भी लगे हैं। तो ये सब भी क्वेश्चंस है। अभी आप लोग क्या इसमें काम कर रहे हैं क्या मुझे नहीं पता है, पर ये थोड़ा मुझे बहुत ही सुपरफिशियल उसके बारे में पता है कि ये न्यूज में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो मैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हम सबको इसके बारे में क्या कंक्लूड में बताना चाहेंगे कि हम लोग क्या करें और हमारा रोल क्या होना चाहिए एज ए एकेडमिशियन, एज ए एनजीओ, एज ए स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं, क्योंकि हम विमेन और केमिकल्स पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बोलना चाहूंगी। सो आई थिंक हम जो कोशिश कर रहे हैं केमिकल एक्सपोजर, वेस्ट एक्सपोजर, जिन भी चीजों की, मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट नीड है आज के टाइम की कि वी ऑल, हम लोग साथ में काम करें, साथ में मिलके काम करें। एनजीओज, एकेडमिशियंस, एजुकेटर्स, गवर्नमेंट, सब लोग मिल के साथ में काम करें और बराबर के स्तर पे काम करें।
तो जो जेंडर इनइक्वालिटी है, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम इसे पीछे छोड़ें। तो हम अपने घरों में शुरू करें, हम अपने घरों में अपनी औरतों को बिल्कुल बराबर का दर्जा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ काम सिर्फ औरतों को करना चाहिए क्योंकि वो औरत है, और कुछ काम सिर्फ आदमी को करना चाहिए कि वो आदमी है। तो आई थिंक जब हम एक दूसरे का मिलके सपोर्ट में साथ में काम करते हैं, तो आई थिंक काफी प्रोग्रेस हमें देखने मिलेगा। आपने इंटरनेशनली भी देखा होगा अभी कि न्यूजीलैंड प्रेसिडेंट जो थी, उन्होंने कितना इजीली, इतना बेटर वे में कोरोना केसेस को हैंडल किया। या हम ऐसे केसेस पढ़ते हैं कि विमेन लीडर्स आर आल्सो डूइंग दैट। तो आई थिंक हमारे बहुत जरूरी है आज के टाइम पे कि ज्यादा से ज्यादा विमेन लीडर्स खड़ी हों, उनको सपोर्ट मिले, वो खुद से स्टैंड ले और उनको आगे से सपोर्ट मिले टू फाइट फॉर दिस इशू। क्योंकि ये जो केमिकल इशू है, ये हमें स्पेसिफिकली अटैकिंग है टू विमेन हेल्थ, एंड स्पेशली अगर विमेन हेल्थ को अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली हमारी फ्यूचर जनरेशंस को अटैक कर रहा है। तो आई थिंक जेंडर इनइक्वालिटी इज वन थिंग कि हमें अपने घरों से आज के टाइम पे शुरू करना चाहिए। वी हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, सो दैट किसी को भी कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी डिफरेंट ट्रीटमेंट ना हो बेस्ड ऑन देयर जेंडर, बी इट अ विमेन, बी इट अ मैन, बी इट अ गर्ल और अ बॉय। फर्स्ट एंड सेकेंडली मैं बोलना चाहूंगी कि केमिकल्स, आई थिंक जैसे कि शीतल बहन ने भी बोला, और मैं आजकल खुद से भी कोशिश कर रही हूँ ये चीज करने की, कि टू गो बैक टू आवर ट्रेडिशनल वैल्यूज। आई थिंक हम एक ऐसी कंट्री है कि हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस हैं जो हम काफी सालों से यूज करते आए हैं। सो आई थिंक इट्स टाइम कि हम उनको रिविजिट करें, अपने नेचुरल चीजों को रिविजिट करें और अपना डिपेंडेंसी केमिकल्स पे जितना हो सके रिड्यूस करें। क्वेश्चन करें कि हम क्या यूज कर रहे हैं, कोशिश करें चीजों को समझने की, पढ़ने की, एक दूसरे का अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर आपको पता चल रहा है कि ये चीज नुकसान दे रही है, आप बिल्कुल अपने फैमिली को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें कि क्या हम लोग के इम्पैक्ट्स हैं चीजों के। एंड इवेंचुअली एम शुड बी कि हम एक ऐसा फ्यूचर की तरफ प्रोग्रेस करें जहाँ पे हमारा एक हार्मनी में हो, सब कुछ सस्टेनेबल हो, जहाँ पे पीपल आर ट्रीटेड इक्वली एंड केमिकल एक्सपोजर इज लेस। वी आल्सो रिस्पेक्ट आवर मरीन लाइफ, हमारे इकोसिस्टम, हमारे एनिमल्स एंड आवर प्लांट्स एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई वुड से एज द लास्ट नोट। थैंक यू गुरप्रीत बहन। हमारे साथ पर्यावरण मित्र से महेश भाई जुड़े हैं, हमारे डायरेक्टर अरुण भाई गांधी भी जुड़े हुए हैं। मैं हमारे डायरेक्टर अरुण भाई गांधी से विनती करूंगी कि वो आभार प्रकट करे। अरुण भाई। शीतल बेन अवाज आवे छे? ओके ओके। आज के हमारे अतिथि तृप्ति अरोरा जी, महेश भाई, डॉक्टर शीतल बेन, फाल्गुनी बेन और ग्रीन कैटालिस्ट के हमारे सभी साथी मित्र, सबसे पहले मैं आज के हमारे जो अतिथि हैं, जो तृप्ति अरोरा जी जो हैं, उन्होंने काफी सही बात हमारे समाज के लिए हमारे सामने प्रस्तुत की है। जब इक्वालिटी की बात आती है तो कोई काम के संदर्भ में कोई भेद नहीं होना चाहिए, और सही उन्होंने बताया कि ये काम मेल का है, ये काम फीमेल का है, या कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सब काम हमारा है, हमारे परिवार का है, हमारे समाज का है। इसी प्रकार से हमें सोचना चाहिए। आज स्पेशली जो केमिकल इम्पैक्ट जो है, स्पेशली हमारे महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में जो है, उसके संदर्भ में काफी अच्छी जानकारी हमें बताई। मैं हमारे सभी ग्रीन कैटालिस्ट, रा फाउंडेशंस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिपार्टमेंट्स और पर्यावरण मित्र की ओर से मैं आपका आभारी हूं कि आपने खूब अच्छी तरह से ये बात हमारे सामने प्रस्तुत की है। साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है, उस पर हमें काफी सोच करने का आपने एक अवकाश दिया है। हम तो करीब एक साल से ये वैसे संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये संवाद का 23 का अध्याय है और 23 के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, तो मैं आपका भी आभारी हूँ कि आप इतना वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आप तो लगभग 24 देशों के साथ, उनकी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं।
आप रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं IPEN के। तो इतने काम में व्यस्तता के बावजूद भी हमारे साथ आपने वक्त निकाला और हमें हमारे समाज की जो तासीर है वो आपने बताई। मैं देखता हूँ कि मैं जो समझता हूँ, तो आपने एक शब्द में जो बताया कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। हमें विश्व के संदर्भ में समझना है, सोचना है, मगर गांव के आगे हमें क्या करना है। केमिकल के इम्पैक्ट हमारे गांव के जो महिलाएं जो हैं उन पर क्या होती है, उसके संदर्भ में हमें काफी चिंतित किया है। वो हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए। और कई कई सारे आपने डायपर के संदर्भ में और कई वैसे आपने उदाहरण बताए। थोड़े दिनों के पहले जब मैगी की बात आई थी तो उनमें भी लीड की मात्रा काफी बढ़ी थी, तो उनके ऊपर काफी प्रतिबंध लगाया था। मगर आज जो मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट जो हो रही है उसके हम लोग कैसे इतने अंधे बन जाते हैं, तो हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और केवल जीने के लिए सब कुछ हमारे लिए है, इसी प्रकार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधी ने ये जो बात बताई थी कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, जो जीवन शैली हमने बताई थी, इसी प्रकार हमें पास में जाना चाहिए, बैक टू नेचर हमें अपनाना चाहिए। हमें बेहद खुशी भी है कि आपने जो कुछ कोर्स के बारे में जो बताया, गुजरात विद्यापीठ वो भी टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। हम भी कई वैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज चलाते हैं। हम साथ में मिलकर गुजरात के संदर्भ में कुछ न कुछ कोर्स हम स्वीकार शुरू कर सकते हैं, तो हम आपका भी आभारी रहेंगे, हमारे डिपार्टमेंट भी आपका आभारी रहेंगे। हम हमारे साथ इस प्रोग्राम में महेश भाई हैं, फाल्गुनी बहन है, वो काफी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम लोग साथ में मिलकर सोसाइटी की जो कुछ भी सेवा हो सके इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। आप भी हमें गाइड करेंगे, कुछ ना कुछ हम आपके माध्यम से कुछ ना कुछ कोर्स गुजरात के संदर्भ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो भी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने काफी हमें मार्गदर्शन दिया। और फाल्गुनी बहन, डॉक्टर महेश भाई और हमारे ग्रीन कैटलिस्ट के सभी स्वयंसेवक की ओर से मैं आभारी हूँ। मैं हमारे सभी जो स्वयंसेवक हैं उनका भी आभार हूँ और सबको दिवाली की शुभकामना भी देता हूँ। अगले जो दिवाली भी अगले संडे आ रही है उसकी शुभकामना भी आपको देता हूँ और हम साथ में मिलकर कुछ नया काम नए साल में करेंगे। फिर से आपका धन्यवाद। हमारे ग्रीन कैटलिस्ट स्वयंसेवक की भी आभारी हमारे महेश भाई और फाल्गुनी बहन और डॉक्टर शीतल बहन ने खूब बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशंस किया, काफी क्वेश्चन आंसर्स भी किया। मैं शीतल बहन का भी आभारी हूँ कि एक हमें बहुत बड़ा एकेडमिक प्रोग्राम हमने किया है, गाइड किया है। फिर से आपका और हमारे सबका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद अरुण भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे आके। एक्चुअली मेरे लिए ये बहुत बहुत ही काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू तृप्ति बहन, थैंक यू अरुण भाई और सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं 1-1.5 घंटे से और बात सुन रहे हैं और हमारे आगे भी ये सब कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे। आप सबका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।